डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज 80th इंडिपेंडेंस डे के इस अवसर पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज जैसे हर साल ये बहुत ही प्यारा दिन है। ये वो दिन है जो बेसिकली बताता है कि कैसे भारत के आज़ादी के बाद कई सारे वेस्टर्न गुरु पंडित ने एक तरीके से मजाक बनाया था कि इंडिया इज गोइंग टू कोलैप्स। विंस्टन चर्चिल जैसे व्यक्ति जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया एक सोसाइटी है बारबेरियंस की, and it is going to soon collapse under its own weight, under its own contradiction. But come to present, India has not only, my friends, survived, but at present, India is the world's fastest growing economy. And then people say, कि क्या हो गया? What happened after independence? आज इंडिया की हालत देखो, चाइना की प्रोग्रेस देखो. That's again a very ridiculous comparison. Whether China has so much of diversity, whether China had that toxic past which India has to go through, whether China had that geographical problem, a terrorist state like Pakistan, no. So, what we have achieved, let's be very proud of that. And this is a day when we have to be patriotic, we have to reflect on ourselves, we have to think about what we can do for the society, and let's try to fight back those myths, because this is the day when it gives a tight punch to all those people who have criticized or who have questioned about the existence of India. India, my friends, was the greatest experiment which one could have ever imagined. With that literacy rate, with that health standard, where life expectancy was less than 40, when a country which was looted and plundered for non-stop 200 years was divided on the basis of caste, religion, and all sorts of identity, a country was promoting actively terrorism against India, both from Western Front and as well as the Eastern Front. And see now where India it is. So this is a day to really feel passionate about what we have done. But let me tell you, passionate and proud does not mean becoming andhbhakt. Because if you're an andhbhakt, then that is going to be the biggest tyranny of India. Because democracy works on criticism. Democracy works on questioning who is in power. And that's why, if this is a day to feel proud about India, then this is also a day to introspect where are we doing wrong. So that the next Independence Day, India is far more a better country. And that is why people like Ambedkar has warned that India might collapse only when people become andhbhakts. India will only become corrupt. India will only become, stagnant if people do not have the courage to ask question. Whoever is in power, party A, party B, does not matter. Because the moment someone is in power, they have the authority. And when you have authority, the chances of misusing that authority is very much. So let's try to understand today's Prime Minister Modi's speech. And Prime Minister Modi is one of that person जो कई साल से लगातार back to back speech दे रहे हैं. And whenever he speaks, it is very, very inspiring for someone to listen. Because at the end, his speech is packed of ambitions, his speech is packed of emotion, his speech is packed of the greatest oratory skills. So let's try to declutter what Prime Minister Modi said today on the eve of 80th Independence Day. And let's try to also critically analyze that whether Prime Minister Modi is saying something, but maybe he does not mean that. So we'll try also to give you the other perspective of where Prime Minister Modi's speech is only a speech. The action might not come. So प्राइम मिनिस्टर मोदी के आज स्पीच का 5 ब्रॉड थीम्स है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनवील किया, द नेक्स्ट रोड मैप फॉर इंडिया बिकमिंग विकसित भारत.
ऑब्वियसली इस 5 ब्रॉड थीम्स में या इस नेक्स्ट रोड मैप में सबसे बड़ा प्रायोरिटी यूथ पे है, होना भी चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से आज जेंजी का प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया इज हैपनिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स, दैट इज रियली ट्राइंग टू चैलेंज द माइट ऑफ द गवर्नमेंट. इसीलिए द फर्स्ट theme which Prime Minister Modi talked in length was about how to reap this demographic dividend, how to create a dignified life for the young people. And that is where a large promise was made to youth about jobs and opportunities. The second broad theme was uncertainty ke is world mein achieving self reliance. Now this is one of the theme जो 1947 से लगातार चल रहा है. It was Nehru who basically first talked about self reliance. Then it was Make in India. Then it was Atmanirbhar Bharat. So the name has changed, but the essence has always remained same, that India needs to become self-independent. थर्ड, स्पीड के ऊपर बहुत फोकस किया गया था. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने थर्ड ब्रॉड थीम में दिया कि बाय 2047 वी वांट टू बिकम विकसित भारत, देन वो चलता है माइंडसेट से हमें निकलना होगा. And our government is going to give full priority on getting the things done, not only to introduce new things. So faster governance and reform is the third theme which Prime Minister Modi has talked about. The fourth is manufacturing, technology or export. The three pillars, what is going to drive India's towards becoming Viksit Bharat. तो इसके ऊपर काफी ज्यादा पुश किया जाएगा. एंड लास्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी डिस्कस्ड अबाउट वुमेन रिजर्वेशन एंड नक्सल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, वेयर ही टॉक्ड अबाउट नक्सल फ्री भारत. सो इन 5 ब्रॉड थीम्स के बारे में लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज सेड. तो सबसे पहला थीम है फोकस ऑन यूथ, जहां पे जॉब्स, एआई स्किल्स और फ्री कोचिंग के ऊपर बात किया गया है. राइट. तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टाइम एलोकेट किया अपने स्पीच में, तो वो था यूथ के ऊपर. और उन्होंने कहा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट विकसित भारत, टेकिंग द कंट्री फॉरवर्ड एट ग्रेट स्पीड, who is going to benefit the most? It is the youth, because obviously the future of India is the young India. उन्होंने कहा कि 2.5 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं इस समय स्टार्टअप इंडिया में. 1 लाख करोड़ का एक इनोवेशन फंड बनाया गया है. एंड दैट्स व्हाई मोदी सेड टू द यंग पीपल, इफ यू हैव ड्रीम्स, don't think we have lack of resources. Come to the government. Government has abundant of resources to ensure that your dreams become reality. साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा that in the coming 5 years, in the coming next year, 1 करोड़ young people का ट्रेनिंग होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्कीम में, और पूरे देश में एक नेटवर्क बनाया जाएगा फ्री ऑनलाइन कोचिंग का, जिससे फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस किया जा सके ऑन मिडिल क्लास फैमिलीज हु आर डिपेंडेंट ऑन प्राइवेट कोचिंग. इसके अलावा द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो प्लान अ टैलेंट हंट अमंग चिल्ड्रेन जो 5 से 15 साल के हैं, जो 2036 के ओलंपिक्स के लिए अगर उनका अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट किया जाए, देन मे बी इंडिया वुड परफॉर्म दिस टाइम बेटर एज कंपेयर टू द लास्ट ओलंपिक इन द 2036 ओलंपिक. साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यंगस्टर्स को कहा दैट डोंट ओनली लुक फॉर जॉब्स, especially in government or factory jobs, look for new kind of opportunities, be creating your own company, AI में, aviation में, sports में, drones में, electric vehicles में, and bioeconomy में. So basically Prime Minister Modi is saying that try to broaden your vision, end your obsession with getting a normal factory job or a conventional government job. Try to be creative, try to think about new things, right? So this is what Prime Minister Modi has said, but again, ये किसको नहीं पता है मेरे हिसाब से. Now I'm giving you my critical perspective. If Prime Minister Modi is very serious about youth, first of all, why education budget is stagnating? Why education budget in the past 10 years has declined? Why you're not ensuring quality in the private institutes in India, जहां पे केवल डिग्रीज दिया जा रहा है, there is no teaching being given, right? Free online coaching. Why you need free online coaching? Why you're not trying to focus on school based evaluation? क्यों हर चीज के लिए आज इंडिया में एक बच्चे को एग्जाम देना पड़ता है? डीयू में एडमिशन चाहिए, सीयूईटी दो, 12th के मार्क्स का कोई मतलब नहीं है, राइट? उसके बाद अगर आपको डीयू के बाद पीजी करना है, तो फिर आपको कॉलेज में आपने 3 साल में कैसा परफॉर्मेंस किया, इससे कोई लेना देना नहीं है, देन आपको सीयूईटी पीजी देना पड़ेगा.
राइट। नीट का एग्जाम देकर अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 12th के मार्कशीट का कोई फायदा नहीं है। तो जिस तरीके से आज ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस करके एक ऑल्टरनेट सिस्टम इंडिया में खड़ा रह गया। यस, आई एम ऑल्सो अ टीचर एट अ कोचिंग सेंटर, but that does not mean कि I'm very fan of coaching center. Yes, coaching center is there to supplement, but coaching center, how come it is trying to replace the traditional system? That is not what I am liking. राइट। सो कोचिंग शुड बी देयर बट ओनली एज अ सेकेंडरी थिंग, कि अगर बच्चे को एक सब्जेक्ट में लैक कर रहा है वो जाके कुछ एडिशनल मदद ले सकता है, फ्रॉम अ प्राइवेट कोचिंग। बट प्राइवेट कोचिंग कैन नेवर बिकम अ सब्सटीट्यूट ऑफ पब्लिकली फंडेड वेल एस्टैब्लिश्ड एजुकेशन सिस्टम। राइट। अब आप 2036 ओलंपिक्स के बारे में बात कर रहे हो, बट इंडिया इज प्राइमरली ऑब्सेस्ड विद क्रिकेट। राइट। आज आप देखो हॉकी का क्या हाल है, आज आप देखो कितने सारे रेसलर्स हैं जो कॉमनवेल्थ गेम जीते हुए हैं, बट वो अभी उनको एक अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा है। राइट। सो ठीक है, इट्स अ वेरी एम्बिशियस थिंग, नो डाउट, बट एट द एंड लेट्स होप दैट वॉट एवर इट्स सेड उसमें कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाया जाए, और उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लाने के लिए जो फाइनेंशियल एलोकेशन है, जो विल पावर है, जो लैटरल एंट्री है, इन चीजों को इसमें और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सेकंड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी सिक्योरिटी फॉर आत्मनिर्भर भारत। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ब्लंटली कहा कि आज वर्ल्ड जो है इट इज वेपनाइजिंग रिसोर्सेज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, चिप्स। तो एक तरीके से चाइना, अमेरिका और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इन सब के ऊपर एक साथ निशाना साधा गया, नॉट जस्ट एट इवन लैंड मासेस। राइट, लैंड मासेस आर बीइंग वेपनाइज्ड। एक तरीके से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले कॉन्टेक्स्ट में शायद कह रहे होंगे दैट दिस इज हाउ द era of free world, open world, the era of free trade, that is subsiding and the world is becoming highly restrictive. और इस context में we cannot rely on at least energy from outside world to such a great extent, because इस समय 90% of crude oil is coming from outside. तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर जो ऑलरेडी भारत बना रहा है, सोलर एनर्जी पे फोकस होगा, और फोकस रहा भी है। 2 गीगावाट था 2014 में, आज हमारे पास एक इंप्रेसिव 160 गीगावाट का है। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और एआई डेटा सेंटर्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है। बट अगर आप देखेंगे तो 2015 में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह चीज कहा था दैट हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो 10 साल में ही इज गोइंग टू कट इट डाउन टू 67%, और सॉरी 57%, और 67, आई एम नॉट एबल टू क्लियर, बट उन्होंने कहा था उस समय लगभग 80% था, उसको वो कह रहे थे कि कम करके 67% पे लाएंगे, येस, इन द कमिंग 10 इयर्स। बट सी 2014 से आज हम 2016 में हैं, और हमारी क्रूड ऑयल की जो डिपेंडेंसी है वो 80% से बढ़कर 90% हो गई है। So let's again hope that whatever Prime Minister Modi is saying, he is very serious and he's going to, get it done now. Get it done now, right? Third is speed of governance. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगेन कहा कि पहले की जो गवर्नमेंट हुआ करती थी उसमें ये कहा जाता था वी विल डू इट, समथिंग विल हैपन, ना कुछ होगा, मतलब भाई चलता है। That was a culture of delivery, a slow, lethargic culture of delivery. But now Prime Minister Modi has said that ये गवर्नमेंट में जिस तरीके का स्पीड देखने को मिला है, ये आज तक किसी भी गवर्नमेंट में सिंस इंडिपेंडेंस नहीं देखने को मिला है। वो चाहे टैप वाटर कनेक्शन है, गैस कनेक्शन है, टॉयलेट है, हाउसिंग है, डिफेंस प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रेलवे कोचेज है, मोबाइल फोन्स है, पेटेंट्स हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, यूपीआई है। तो यहाँ पे तो आई वुड बी रियली गिविंग अ क्रेडिट दैट दिस गवर्नमेंट हैज रियली shown a huge amount of courage. वो चाहे सी demonetization was something which you can criticize on terms of merit कि यार वो सक्सेसफुल नहीं रहा, उसको लोगों ने बाईपास कर लिया, बट एटलीस्ट the intention was correct, and more importantly it was a courage कि एक लीडर को ऐसे देश में इतना बड़ा रिफॉर्म लाने के लिए करेज चाहिए। राइट, जीएसटी जैसा कानून आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जैसा कानून आया। राइट, आज इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, यूपीआई हैज बिकम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सिस्टम, डिफेंस प्रोडक्शन हमारा कितना मैसिवली इंक्रीज हुआ है। सो दिस इज रियली इनक्रेडिबल। और गैस कनेक्शन आप देख सकते हैं उज्ज्वला योजना के अंदर, टॉयलेट स्वच्छ भारत अभियान के अंदर, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, हाउसिंग, टैप वाटर जल जीवन मिशन के अंदर, तो रियली स्पीड यहाँ पे इनक्रेडिबल देखने को मिला है। बट अभी भी अगर आप देखेंगे किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो दलाल बैठे रहते हैं, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो अभी भी कहीं ना कहीं जो बेसिक चीजें हैं वहां पे बहुत ज्यादा स्लो देखने को मिला है। तो यस, स्पीड हैज बीन मंत्रा, बट स्पीड एट द टॉप लेवल तो बढ़ा है, बट अगर आप बॉटम लेवल पे देखेंगे, छोटे छोटे गवर्नमेंट ऑफिस
प्रोसेसेस में वहाँ पे अभी भी बहुत चीज़ें स्लो चल रही हैं और इसको रिफॉर्म करने के लिए टेक्नोलॉजी को और यहाँ पे इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ग्लोबल मार्केट को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से क्लियरली है कि इंडिया की इकॉनमी जो बहुत हद तक ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी नहीं रहती थी, आज ये समय आ चुका है दैट इफ इंडिया बिकम्स wants to become Viksit Bharat and our companies has to get integrated with the world's top company जो चाइना ने किया है। और उस कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने किया है लगभग 40 कंट्री के साथ, जिसमें कुछ कंट्री के साथ हो चुका है और अब होने वाला है, इससे हमारे कंपनीज के लिए बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट खड़ा है। बट टू गेट दिस जगह इन द ग्लोबल मार्केट वी हैव टू फोकस ऑन कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्केल। सो वेरी यस, एफटीए का जो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के इस कार्यकाल में हुआ है दैट इज रियली इम्प्रेसिव। और अगर आप लास्ट कल का डेटा देखेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट है लास्ट मंथ जुलाई में वो इम्प्रेसिव तरीके से बढ़ा है, एंड थैंक्स टू दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसकी वजह से इंडिया के लिए नए नए मार्केट्स ओपन हो रहे हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है, सप्तधारा, 7 स्ट्रीम्स, जिसमें आने वाले समय में इंडिया को ग्लोबली अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी। वो 7 सेक्टर्स, वो 7 स्ट्रीम्स जिसमें इंडिया को अपने ग्लोबल कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना पड़ेगा जिससे हम डेवलप्ड कंट्री बन सके। वो है मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, ग्रीन इकोनॉमी एंड सॉफ्ट पावर, जो हमारा डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो ये 7 स्ट्रीम्स हैं जिसमें आने वाले समय में इंडिया को काफी एक्टिवली काम करना पड़ेगा। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि क्यों आज ऐसी बात है कि भारत के 50 इंडियन कंपनीज जो हैं वो फॉर्च्यून 500 में नहीं है। तो एक तरीके से ही हैज अपील्ड दैट देखो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही है, वी आर डूइंग ऑल ऑफ दैट थिंग, बट नाउ इट इज अप टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, टू द एमएसएमईज, दैट यू हैव टू नाउ रियली फोकस ऑन कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्केल टू टैप दिस मैसिव पोटेंशियल व्हिच द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। फिर लास्ट थीम में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वुमेन कोटा और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात किया और कहा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये 33% कोटा फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज का सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रेडी टू गिव यू द क्रेडिट, बट लेट्स नॉट फाइट दिस जिसकी वजह से वुमेन का राइट जो है उसको और ज्यादा डिले हो। इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में पास किया गया है इसको इंप्लीमेंट किया जाए, बिकॉज इस समय आपको पता है डीलिमिटेशन को लेकर लड़ाई चल रहा है। बट मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप रियली सीरियस है वुमेन राइट्स के तो 2029 में अगर ये एक्ट पास नहीं भी हो पाता, इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, मान लो डीलिमिटेशन के चक्कर में ये फंस जाता है, सो आई हैव अ रिक्वेस्ट कि 2029 के लोकसभा में आप खुद बीजेपी में 33% वुमेन को टिकट दे देना, दैट्स इट, राइट? क्योंकि 2023 में ये आपने एक्ट लाया, बट 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आपने केवल 12% ही टिकट वुमेन को दिए थे। So why you are waiting? Let's say opposition जो है वो boycott कर रहा है, forget about it. If you are really serious, then forget about what opposition is doing. आप खुद 2029 के लोकसभा इलेक्शन और बीजेपी की जितने भी रूलिंग स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में आप एक रिजोल्यूशन पास करो that 33% tickets will be given out of all the seats among the BJP government at the state and the center. और फिर उन्होंने कहा माओइस्ट मूवमेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि भारत ऑलरेडी इस साल नक्सल फ्री भारत बन चुका है, बट जो दिमागी नक्सल है, जो नक्सल मेंटालिटी के लोग अभी भी दुनिया के इस देश के हर कोने में बैठे हुए हैं, इंस्टीट्यूशन और पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इससे भी हमें फाइट करना पड़ेगा। तो अर्बन नक्सल्स की एक तरीके से इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां पे बात कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है एंड इट इज वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ दैट आत्मनिर्भर भारत। इंडिया ही मस्ट बिकम अ ग्लोबल डिफेंस सप्लायर, डेवलप ड्रोन्स एंड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स एंड टेक लीडरशिप इन हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी। सो ये 5 ब्रॉड थीम्स हैं। आपको क्या लगता है, आपके क्या ओपिनियन है स्पीच के बारे में? फ्रेंड्स प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।